Morning students. Today we are going to discuss the next topic, that is factors affecting the rate of a chemical reaction. So let's start. Factors affecting the rate of reaction. So, what are the various factors which will affect the rate of a chemical reaction? So, first is concentration of reactant. Concentration of reactants. So, how the concentration of reactants will affect the rate of a reaction? See, greater the concentration of reactants, greater will be the ease of formation of products. So, the rate of reaction increases with increase in the concentration of reactants. ठीक है, तो यहां पे हमारे पास कॉन्सेप्ट बन जाता है, ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ग्रेटर विल बी द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. मींस जितने ज्यादा आपके पास रिएक्टेंट्स होंगे उतने ही ज्यादा आपके पास क्या फॉर्म होंगे, प्रोडक्ट्स वो फॉर्म होंगे. ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्टर आ जाता है दैट इज टेम्परेचर. And see how the increase or decrease in temperature will affect the rate of reaction. See, there is a general concept. For every 10 degree rise in temperature, the rate of reaction becomes double. ठीक है, अगर हम 10 डिग्री राइज करते हैं टेम्परेचर में तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा. सो टेम्परेचर के साथ भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है. विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, with increase in the temperature, rate of reaction increases. For every 10 degree rise in temperature, for every 10 degree Celsius rise in temperature, the rate of reaction becomes almost double. The rate of reaction becomes almost double. ठीक है, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स. नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स. सी, if the reactants need lesser bond dissociation energy, reactants जो हैं अगर वो ज्यादा रिएक्टिव हैं, उनको डिसोशिएट करने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, then the rate of reaction will be fast. If the reactants are more reactive
if the reactants are more reactive, then the rate of reaction will be fast. Then the rate of reaction will be fast. Then next factor is surface area. Next factor is surface area. So how the increase in surface area will affect the rate of reaction? See, with increase in surface area, the rate of reaction increases. Increases means greater the surface area, greater will be the rate of reaction. Next जो factor आ जाता है, that is effect of radiations. Effect of catalyst डिस्कस कर लेते हैं पहले. Effect of catalyst. Okay. So a catalyst जो है, what is the use of catalyst? Catalyst हम क्यों use करते हैं? Catalyst will increase the, it will enhance the rate of reaction. So a catalyst will increase the rate of reaction a catalyst will increase the rate of reaction. So catalyst को यूज करने का क्या पर्पस है? कैटलिस्ट जो वो रिएक्शन को क्या करता है, रिएक्शन के रेट को क्या करता है, स्पीड अप करता है. ठीक है. सो a catalyst will increase the rate of reaction. The reaction which is taking more time, that will take lesser time in the presence of a catalyst. ठीक है. 6 आ जाता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस. इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस. अब देखो रेडिएशंस का क्या इफेक्ट होगा. रेडिएशन से भी एनर्जी आएगी. ठीक है. एनर्जी अगर रिएक्टेंट्स को मिल रही है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अगर एनर्जाइज हो रहे हैं, देन डेफिनेटली दे विल इजीली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स. सो इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस, द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज. The rate of reaction will increase when the reactants are subjected to radiations. When the reactants are exposed to radiations, exposed to रेडिएशंस. ठीक है. तो ये सारे के सारे फैक्टर्स एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं. रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा? जितने ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे उतने ही ज्यादा प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे. ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ग्रेटर विल बी द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है टेम्परेचर का इफेक्ट. विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज. अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा? रिएक्टेंट्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. अगर उनकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, दे कैन रेडिली ओवरकम द एनर्जी बैरियर एंड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स. एंड देयर इज अ वेल नोन कॉन्सेप्ट, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम ऑलमोस्ट डबल. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स. If the reactants molecules require lesser energy for their dissociation, if the bond dissociation energy of the reactant molecules is less, then they will be easily converted into products. Then surface area. With increase in surface area, more reactant molecules will undergo collision
as the surface area is more and they will be easily converted into products. So there is a concept, well known concept, greater the surface area, greater will be the formation of a products. Then effect of catalyst, a catalyst will increase the rate of reaction, जो catalyst है वो increase करेगा rate of reaction को, ठीक है. So what is the purpose of using the catalyst? A catalyst will provide an alternate path of a lower activation energy. Then effect of radiations, when the reactant molecules are exposed to radiations, the rate of reaction will increase. ठीक है, जब reactant molecules को expose किया जाता है किसके, radiations के, then what will happen? The rate of reaction will increase. So all these are the factors which will affect the rate of reaction. Now students, we have studied how the rate of reaction is affected by increasing concentration of reactants. Now in the next topic we are going to discuss the dependence of rate of reaction, dependence of rate of reaction on the concentration of reactants. So first of all, what is law of mass action? We will consider here law of mass action. So as per law of mass action, see what will happen? Dependence. So law of mass action, according to this law, the rate of reaction is directly proportional to the rate of reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reactants, ठीक है. And here we can say that each concentration term raised to power their respective stoichiometric coefficients. So here I am considering a reaction in which A and B are two reactants and they are combining to form a single product AB. Now as per a law of mass action, what we have written, rate of reaction is directly proportional to the molar concentration of reactants. See, so rate of reaction के लिए यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा? Rate और rate of reaction is directly proportional to concentration of A into concentration of is directly proportional to the product of molar concentration of reactants, A की concentration into B की concentration. ठीक है. Then here rate of reaction is equal to rate constant K into A की concentration into B की concentration. ठीक है. So rate of reaction is equal to rate constant K into reactants की जो भी concentration यहाँ पे involved है. ठीक है. And अगर यहाँ से हमें rate constant K को define करना हो तो वो भी हम define कर सकते हैं. अगर here K is constant of proportionality, constant of proportionality known as rate constant. K को क्या बोलते हैं? K is what? Rate constant. ठीक है.
एंड इफ वी हैव टू डिफाइन दिस रेट कांस्टेंट, अगर हमें इस रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना हो, देन हाउ वी कैन डिफाइन दिस रेट कांस्टेंट? सो रेट कांस्टेंट k is defined as the rate of reaction when the molar concentration of the reactants of the reactants is unity. ठीक है. So K is defined as the rate of reaction when the molar concentration of the reactants is unity. ठीक है. So A की concentration 1 है, B की concentration 1 है, then K is equal to what? Rate of reaction. वही हमने लिखा है. K is defined as the rate of reaction when the molar concentration of the reactants is taken as a unity. ठीक है. So according to law of mass action, rate of reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reactants. Rate of reaction is directly proportional to A and B, product of concentration of A and B, and rate of reaction is equal to K into A into B, and here K is constant of proportionality, known as what? Rate constant. Now, what are the characteristics of rate of reaction? अब इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? Characteristics of rate of reaction. So students, next are characteristics of rate constant. Characteristics of rate constant. Characteristics of rate constant. So first one is the value of rate constant. The value of rate constant determine the progress of the reaction. Determine the progress of the reaction. Determine the progress of the reaction. Larger value of K, larger value of K means a fast reaction, while smaller value of K means slow reaction. Means a slow reaction. Then next characteristic is different reactions have different values. Different reactions have different values of rate constant K. Then the value of K is fixed for a reaction at a particular temperature. At a particular temperature, and it will vary,
with increase or decrease in temperature, with increase or decrease in temperature. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास द वैल्यू ऑफ के is independent of concentration of reactants. The value of K is independent of concentration of reactants. जो K की वैल्यू है वो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करते, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सो अगर हम रेट कांस्टेंट K की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहला आ जाता है द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इट विल डिटरमाइन द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अगर K की वैल्यू स्मॉल आ रही है इट मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो, द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग विद अ स्लोअर रेट। इफ द वैल्यू ऑफ K इज लार्ज, अगर रेट कांस्टेंट K की वैल्यू लार्ज है तो ये किसको डिपिक्ट कर रहा है, क्या शो कर रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, फास्ट है। ठीक है, तो स्लो रिएक्शन के केस में रेट कांस्टेंट की वैल्यू स्मॉल होगी और फास्ट रिएक्शन के केस में रेट कांस्टेंट की वैल्यू लार्जर होगी। क्लियर? देन डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट। हर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होगी। अगर डिफरेंट रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी, उनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं होगी। ठीक है, बिकॉज certain reactions, every reaction can take place with a different pace, different speed के साथ कोई रिएक्शन जब वो होगा। ठीक है, उसी वजह से रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। देन द वैल्यू ऑफ K इज फिक्स्ड फॉर अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के केस में रेट कांस्टेंट K की वैल्यू क्या होगी, फिक्स्ड होगी। पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है एंड इट विल वेरी विद इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं डेफिनेटली रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज, रिएक्शन फास्ट होगा तो वैल्यू इंक्रीज करेगी। टेम्परेचर अगर डिक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। ठीक है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो रहा है तो डेफिनेटली रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ओके, देन द वैल्यू K इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो है K की वैल्यू जो है डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, सो ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। यस, एंड यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन जरूर डिपेंड करता है रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, बट रेट कांस्टेंट K जो है वो डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है वो किसके साथ है, वो टेम्परेचर के साथ है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है रेट ऑफ रिएक्शन उसके केस में फास्ट होगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू लार्जर होगी। अगर रेट स्लो है तो उसके केस में जो K की वैल्यू है वो स्मॉल होगी। ठीक है, सो ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट एंड आफ्टर दिस यू कैन राइट द डिफरेंसेस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। ठीक है, सो डिफरेंशिएट आप कर सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन में एंड रेट कांस्टेंट में। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन हमारे पास कहां से आया था, रेट लॉ एक्सप्रेशन से, लॉ ऑफ मास एक्शन से आया था। ठीक है, रेट कांस्टेंट K है, K के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये आप इजिली जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो। आफ्टर दिस वी विल राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसके बाद हम जो है वो क्या लिखेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है डिफरेंट रिएक्टेंट्स के केस में किस वे से जो वो लिखा जा सकता है, दैट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट विल बी हाउ टू राइट एन एक्सप्रेशन फॉर हाउ टू राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, सो जहां तक बात रही रेट ऑफ रिएक्शन की एंड रेट कांस्टेंट की, तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट जहां पे भी बात की जा रही है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद टाइम। ठीक है, और रेट कांस्टेंट जो है वो हमारे पास कहां से आया था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया था। रेट ऑफ रिएक्शन वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड जो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल था उसको हमने रिमूव किया था किससे, बाय अ कांस्टेंट K। ठीक है, अगर हम
रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो वो डिपेंड करेगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, रिएक्टेंट्स की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, जबकि जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो वो इंडिपेंडेंट होती है ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट होंगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम है हमारे पास, तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट हो गया मोल पर लीटर, टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड आ जाएगा। रेट कांस्टेंट के यूनिट्स की अगर बात करें तो डिफरेंट रिएक्शन के केस में डिफरेंट ऑर्डर है अगर रिएक्शन का, तो उसके केस में रेट कांस्टेंट के यूनिट्स जो वो डिफरेंट होंगे। और वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं यूनिट्स? वी कैन फाइंड आउट द यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट बाय राइटिंग द रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। सो रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना है, ठीक है।